السلام علیکم، بس کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو بیسٹ ناول حفاظت کے ایپیسوڈ نمبر 12 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ضامن کی یوں کہہ لگانے سے حیام کے گال گلابی ہو گئے۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ میں اپنے طریقے سے کھلواؤں؟ یہ بولنے کے بعد ضامن اس کی طرف ابھی تھوڑا جھکا ہی تھا کہ حیام جلدی سے اپنی گود میں پڑے گفٹ کو کھولنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ نہ جانے کیوں کپ آ رہے تھے، شاید وہ اس طرح اتنا سب کچھ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی وضاحت ضامن کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ گفٹ ریپر کھولتے ہی اس کے ہاتھ میں ایک چوکور سا ڈبہ آیا تھا جو بند تھا۔ ضامن کی نظریں اس کی طرف ہی تھیں۔ حیام نے وہ ڈبہ کھولا تو وہ خالی تھا۔ اس نے چنبے سے ضامن کی طرف دیکھا جو پہلے اس کی طرف متوجہ تھا۔ یہ تو خالی ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ حیام ڈبی اس کی جانب کرتے ہوئی بولی۔ اس کے لہجے سے ٹپکتی معصومیت سے وہ محفوظ ہوا تھا۔ اچھا؟ ضامن چہرے پر مصنوعی حیرت سجاتے ہوئے اچھا کو لمبا کھینچتا وہ ڈبہ اس کے ہاتھ سے پکڑنے کے بہانے دوبارہ اس کی کلائی کو گرفت میں لے کر پھر سے اپنے قریب کر چکا تھا۔ حیام کی پشت ضامن کے سینے سے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سب بات کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھے۔ غصہ اس کے چہرے پر چھلکا تھا۔ کب سے اسے تنگ کر رہا تھا۔ اس کے تنگ کرنے میں حیام کو سانسیں لینا دشوار ہو گیا تھا۔ کیا یار بیوی، اتنی آہستہ کیوں بولتی ہو؟ ضامن اس کے کان کے پاس ہونٹ کرتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ اس کے ہونٹ حیام کے کان سے مس ہوئے تھے جس سے حیام کے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑا تھا۔ اس کے کان ضامن کی اس حرکت کی وجہ سے اثر کنار ہو گئے تھے۔ لمبی گھنی پلکیں لرز اٹھی تھیں۔ کیا ہوا بیوی، چپ کیوں ہو؟ حیام کی کلائی اب بھی ضامن کے گرفت میں تھی۔ ضامن نے جب اس کی حالت غیر ہوتی دیکھی تو اس کی کلائی چھوڑ دی، لیکن حیام ابھی بھی اس کی گرفت میں ہی تھی۔ ضامن کے ہاتھ ہٹاتے ہی حیام کی نظریں اپنی کلائی کی طرف گئیں جہاں ایک بہت خوبصورت سلور کلر کا ہتھکڑی کی طرز سا کڑا تھا جس کی چابی پر سائیڈ پر دل بنا ہوا تھا اور آگے اور پیچھے دو چھوٹے نگ لگے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ یہ کڑا تمہیں یاد دلاتا رہے گا کہ تم ضامن کی کیا آدمی ہو۔ ضامن اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے دوبارہ بولا، اس کے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں بولا۔ وہ جو پوری طرح اس کڑے کی طرف متوجہ تھی ضامن کی اس طرح کرنے سے پھر سے کنفیوز ہو گئی اور اس کی گرفت سے نکلنے کی جدوجہد کرنے لگی۔ ضامن کی قید سے نکلنا ممکن نہیں، اس لیے کوشش کر کے خود کو نہ تھکا۔ ضامن اس کی گردن کی طرف جھکا اور اپنے لب آہستگی سے اس کی گردن پر رکھ دیے۔ حیام کا دل ایک پل کے لیے رکا تھا۔ پلیز! حیام نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپتے ہوئے التجا کی۔ اس کی آواز میں جھلکتی لڑزڑاہٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فوراً دور ہو گیا تھا۔ چھوڑ رہا ہوں، لیکن ضامن نے اس پر سے اپنی گرفت ختم کی۔ اس کی گرفت سے آزاد ہوتی حیام دوڑ کر بیڈ سے اتری اور ہموار سانسوں کو ٹھیک کرنے لگی۔ وہ ضامن کے اندر کہی ادھوری بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور اس سے دور تو ہو گئی تھی، لیکن اس کی نظریں اب تک حیام کے وجود پہ، اس کی ایک ایک حرکت پہ مرکوز تھی۔ ضامن کے لب ہی نہیں بلکہ آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ صبح حیام کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ کل جلدی کر جانے کی صورت میں اسے آج سویرے ہی نکلنا پڑا تھا۔ کام پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ آفس میں پہنچتے ہی اسے دارم ضامن کا آفس میں ہی بیٹھا نظر آیا۔ اوئے تو کب آیا؟ ضامن اسے اچانک اپنے آفس میں دیکھ کر ایک دم سرپرائز ہو گیا تھا۔ کل رات کیسا ہے تو؟ وہ ضامن کے گلے لگتے ہوئے بولا تھا۔ آئی ایم فائن۔ تو سنا، ابھی تو پروگرام تھا نا رکنے کا تیرا مسجد وہاں؟ وہ کوٹ اتارتا کرسی کی پشت پہ لٹکاتا بولا۔ اب سارے کام ہو چکے تھے تو رکنے کا کیا سوال پھر میں آ گیا، ویسے بھی یہاں کام بہت ہے، دارم خاص لہجے میں بولا تھا۔ اس کا صاف اشارہ دھیان سامنے کی طرف گیا تھا۔ کس طرح وہ اس کے سامنے پیچھے چلی گئی تھی۔ ایک مسکراہٹ اس کے مونچھوں کے نیچے خوبصورت انابی لب پھیلے تھے۔ اچھا کیا ضامن اس کی مسکراہٹ کو نوٹ نہ کر سکا تھا کیونکہ وہ ساتھ میں موبائل بھی آن کر چکا تھا۔ تمہاری بیوی کیسی ہے؟ ہماری بھابھی؟ اب بسیط ہو کے بولا تھا۔ صرف تیری بھابھی، ہماری نہیں۔ ضامن نے نظر اٹھا کے اسے گورا تھا جو اب بھی مسکرا رہا تھا۔ سمجھ آ رہا ہے مجھے سب، دارم ہنستے ہوئے بولا تھا۔ یار میرا مطلب ہے کہ تو رشتہ تو نہ بگاڑنا، وہ صرف تیری بھابھی ہے۔ وہ سنبھل کے آرام سے بولا تھا۔ دارم کی مسکراہٹ اسے زہر لگی تھی۔ آخر وہ کیسے اس پہ ہنس سکتا ہے؟ مجھے آ رہا ہے سمجھ، ڈونٹ وری، بچے تو نہیں ہونا میں۔ دارم اب اس کو تنگ کرنے میں لگ گیا تھا۔ ضامن کی دکھتی رگ کو اچھے سے جان جاتا تھا۔ واٹ ڈو یو مین؟ ضامن نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا ہنسنا مسکرانا ضامن کو واقعی اب زہر لگا تھا۔ آئی مین اب گڈ نیوز کب سنا رہے ہیں آپ؟ دارم اتنی آسانی سے بولا تھا کہ ضامن کے حیرت سے آنکھیں پھیلی تھیں۔ کیسی گڈ نیوز؟ وہ بالکل نہیں سمجھا تھا۔ ایسی کیا گڈ نیوز اسے سنانی تھی؟
बच्चे ना बनो, तुम मर्द बनो। धर्म झिंझिलाया बिल्कुल भी न था, लेकिन इसका ना समझने से खिला ज़रूर रहा था। तो मैं तुझे क्या लग रहा हूँ? अभी इसने मोबाइल बंद करके टेबल पे रखा था। अभी डैश मुझे चाचू कब बना रहा है तो अब गुड न्यूज़। दारिम ने टेबल पे पड़ी एक फाइल उठा कर ज़मीन के सर पे मारी थी। औकात में रहो, वो तेज आवाज़ में चिल्लाया था और खुशी से भी झिझक से उठा था। दारिम खिलखिला कैसा था, मैं तेरे ये दांत तोड़ दूँ। अंदर रखे ने जामिन पकड़ा था। ओके ओके बड़ी रख ली अंदर। दारे मुस्कुराहट रोक चुका था। जामिन इसके संजीदा होने पर दोबारा कुर्सी पे बैठा था। तू ज्यादा औकात से बाहर आ गया, पता भी है तूने क्या कहा? बेगैरत वो गुस्से से लाल होता, दो चार गालियां इसे दिल में देता बोला था। मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा, तेरे बच्चों का मैं चाचा ही लगूंगा। खालू लगने से तो ना रहा अब। ये जरा सी मेरी ख्वाहिश तू क्या पूरी नहीं कर सकता? दारम अब भी बाज ना आया था। तो ये ही ख्वाहिश तो पूरी कर देना। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि तेरे बच्चों का चाचा मैं कहलाऊँ। उल्टा इस पे बात कर गया था। कोई बात नहीं, दोस्त पे तो जान कुर्बान है। ये यहाँ तो ज़रा सी तेरी ये ख्वाहिश है, अगले साल तक तो यकीनन चाचा बन जाएगा। धर्म खुले दिल से बोला था। अभी क्या बक रहा है तो कहीं माँ से पागल तो नहीं होकर आया ना? ज़मीन पूरी तरह झिंझला कर रह गया था। कुछ नहीं, मैं आता हूँ कुछ देर में। धर्म कुर्सी से उठकर जान छुड़ाता बोला था। बात पूरी करके जाए। जामिन ने इसकी कलाई को थामा। ज़्यादा डीप में न जाए। जामिन साहब को इससे कलाई छुड़वाता वहाँ से निकल गया था। सर्दी ज़्यादा लग गई है मनहूस को, जामिन मुहिमों में बड़बड़ाया था। बेटा कब तक ऐसे रहोगे? मैं तो तरस गई हूँ तुम्हारी हंसी देखने को। अर्ज बेगम बुरहान के कमरे में बैठी लाचार से बोली थी। वो अभी ऑफिस से आया रहा था, अभी वो इसके कमरे में थी। मम्मी की एक स्माइल मैं अपने चेहरे पे नहीं ला सकता। वो तौलिया गर्दन से हटाता, सोफे पे डालता, टी शर्ट पहनता, हमसे लहजे में बोला था। बात लेकर वो अभी ही आया था। मैं कौन सा कह रही हूँ फेक हंसो मेरे बच्चे, मेरे लिए सही, लेकिन हंसो, बोलो, लड़ो, लेकिन इस तरह मत करो। वो तौलिया उठाती जगह पे रख के बोली थी। क्या हंसने की अब कोई वजह है? वो इस्तेज़ाई हंसा था। गिलास शीशे के सामने खड़ा अपने नम बाल सेट करने लगा था। क्या मेरी कोई अहमियत नहीं तुम्हारे सामने? वो दुख से बोली थी। मम्मी है आपकी अहमियत, अभी तो जाऊँ वरना ये शहर ही बुरा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ जगह तब्दील कर लूँ। वो तो तब्दील हो ही चुका हूँ। अब वो बेड पे वापस आता, चाय का कप लेता बोला था। नहीं बेटा, सारा बिजनेस खराब हो जाएगा। ऐसे तो तुम समझ जाओ, खुद को खुश रखो। क्यों खुद को इसके गम में ज़ाया कर रहे हो? तुम मेरे एक ही बेटे हो जान, ऐसा नहीं कर सकते। वो इल्तिजाई लहजे में उसके चेहरा थामते ही बोली थी। लेकिन मम्मी मुझे नहीं रहना यहाँ। वो तो स्मैथ बोला था। जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो वो तो शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही है। तुम खुद को क्यों जोगी बना रहे हो जबकि तुम सब जानते हो? इन्हें गुस्सा आया था। मुझे लगता है मम्मी, मेरा दिल कहता है बेइज्जती कर चुका हूँ मैं, कहीं ना कहीं गलती पर हूँ। मुझे अब जीने नहीं दे रही। वो कप ट्रे में पटकता बोला। तुम गलती पे नहीं हो, गलती पे हमेशा से ही है भी। तुमने इसे पहचानने में देर कर दी। अब तो वो मैरिड भी है। हमें तो पता भी नहीं कौन था वो जिससे इसने शादी की। वो बात बनाते जहर उगल चुकी थी। नहीं मम्मी, बस अब नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसका दिल तड़प उठा था, कहीं शदीद दर्द हुआ था। बुरहान, मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो। बस इस बात का हफ्ता गुजर चुका है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। वो जैसे जैसे असल बात पे आई थी। मम्मी क्या कह रही हैं आप? क्या मैं शादी के लायक लगता हूँ? ये कभी नहीं हो सकता। ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकता मैं किसी और को। तैश में आता गजब के आलम में बोला था। क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम इनकार कर गए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी, शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। वो इससे ज़्यादा गुस्से में बोली थी। आप ब्लैकमेल नहीं कर सकती मम्मी। वो खुद सर हुआ था। तुम्हारी शादी मैं मारिया से कराना चाहती थी, लेकिन तुम हयाम में इंटरेस्टेड थे। मैं खामोश हो गई कि बेटे की खुशी है, लेकिन अब हयाम का तुम खुद देख चुकी है वो क्या कर गई है तुम्हारे साथ। अब फिर मारिया का ऑप्शन है। वो बेहतरीन एजुकेटेड खूबसूरत लड़की है। और सबसे बड़ी बात, तुम में भी इंटरेस्टेड है, लेकिन खामोशी कि तुम हयाम के साथ खुश हो। पर तुम हर रोज़ इसकी इंसल्ट करते हो। अब ऐसा नहीं होगा। हमारे से तुम्हारी शादी अब मैं कराऊंगी और तुम इनकार नहीं कर सकते। वो उंगली उठा के इसे वार्न कर चुकी थी। तो आप ये नहीं जानती कि इसकी मज़ीद शादी होने पर कितनी इंसल्ट करूँगा? वो दरस्त लहजे में बोला था। ये मसला तुम दोनों का आपस का होगा, मस्जिद कोई बहस नहीं होगी। वो कहकर गुस्से से रूम से चली गई थी, जबकि बुरहान को समझ न आया था कि वो किस तरह ये सब करेगा। अंकल, आखिर क्या बात है? आप यंग पे यंग होते जा रहे हैं, सब ठीक है ना? वह दिल हमदानी के ऑफिस में बड़ी शान से बैठी मुस्कुराहट से लबों पे सजाए बोली थी। शायद मैं यंग रहने ही के लिए आया हूँ। वो फाइल पे झुके बोले थे, लहजे में इनकी शरारत थी। नॉट फेयर अंकल, आप ज़मीन के बड़े भाई ही लगने लगेंगे इस तरह तो। वो इनकी इस उम्र में भी मेंटेनेंस देख के हैरान रह जाती थी। किस कदर वो खुद को बना संवार के रखते थे। हर वक्त सूटेड कोट पहने में, बाल जल्द से जमाए, चेहरे पे बुला के संजीदगी से जाए रहते थे। इसी तरह इनकी बेगम थी।
हाँ 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 हो क्या खूब कहा है जामिन साहब, तो जामिन साहब हम कहाँ इनका मुकाबला कर सकते हैं। वो शेर जवान, हम लीडर। वो फाइल बंद करते अपने सामने बैठी छोटी सी लड़की को देखते बोले थे, जो छोटी तो थी लेकिन अपनी उम्र से ज़्यादा मजबूत, बड़ी और पुरएतमाद थी। इसकी एक एक चाल से पुरएतमादी, ब्लॉक और कॉन्फिडेंस झलकता था। नो अंकल, यू आर हिज फादर बाय द वे वेयर ही इज। ब्लैक जीन्स में ब्लू शर्ट पहने, जिस पे बटन सुरखते एतमाद से कुर्सी पर बैठी, अपने मैरून बालों की हाई पोनीटेल बनाए हाथ एक दूसरे में फंसाए बोली थी, जामिन। जामिन के नाम ही इनकी ज़बान खोलते खोलते रुकी थी, कहीं से बुरा न लग जाए। मेरा जामिन तो कराची में ही है, इसकी पोस्टिंग वहीं है। अब तक वो संभल गए थे। हाँ, मेरी पोस्टिंग भी कराची में होने लगी थी इस मिशन के बाद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ ही हूँ। लेकिन जामिन, दारिम से दूर यहाँ दिल नहीं लगता। मुझे लगता है कराची अच्छी जगह है। वजीह का जब से मिशन कामयाब हुआ था, इसकी प्रमोशन कराची में होने लगी थी, लेकिन इनकार कर चुके थे। मेरा बेटा संभल के रहा करो, तुम ख्याल भी रखा करो। यहाँ बेहतर हो, और तुम भी वहाँ चले जाओगे तो मेरा और तुम्हारी आंटी का दिल कैसे लगेगा यहाँ अकेले। दारम और जामिन तो यहाँ ही वहाँ इसको 12 समझाना चाहते थे, बाकी फैसला तो इसका अपना ही होना था। जहाँ बुलावा वहाँ मर्जी। वह कंधे झटकती मुस्कुराई थी। बहरहाल, जब तक आजकल मैं फारिग हूँ, मैं आपके साथ ऑफिस संभालूंगी। वो प्यार से इन्हें पकड़ गई थी। श्योर बेटा, सब कुछ तुम्हारा है। वो इसे हमेशा बेटा कहते थे, क्योंकि वो ना ही जामिन से कम थी और ना ही दारम से, बल्कि हमेशा इन दोनों से एक कदम आगे रही थी। रात के खाने के बाद वह कमरे में आया था। मुलाजिम ने इसे खाना पेश किया था, जबकि यहाँ बेडरूम में ही थी। चलता हुआ एक नज़र यहाँ पे डाल के, जो मोबाइल हाथ में लिए न जाने क्या देख रही थी। वो साइड टेबल पे आया था, कांच का गिलास पानी से भरकर बेड पे बैठा था। हयाम, वो आहिस्ता आवाज़ में बोला था कि वो सुन भी न सकी थी। हयाम, वो ज़रा तेज़ आवाज़ में बोला था कि हयाम के हाथ से मोबाइल नीचे गद्दे पर गिरा था। हाँ जी। वो बिना मोबाइल की तरफ देखे सहम के बोले थी, क्या मोबाइल में लगी रहती है? मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी। बहरहाल, ये पकड़ो। वो पानी का बड़ा गिलास इसकी तरफ बढ़ा था, बोला था, चेहरा हर किसी तासुर से पाक था। हयाम ने गिलास इससे लिया था और जामुन की उड़ाई टैबलेट थामी थी और खाई थी। वह इसकी अच्छी तरह केयर कर रहा था। अब सो जाओ। वो गिलास वापस लेता था, आंखों भरे अंदाज में बोला था, और खुद लैपटॉप उठा के खोल के बैठ गया था। हयाम इसके कहने के फौरन बाद ही मोबाइल वापस रख के सेट करके लेट गई थी। इसका एक हुक्म हयाम के लिए काफ़ी होता था। ज़रा देर में ही जामिन का मोबाइल बजने लगा था। जामिन मोबाइल उठा के इसने स्क्रीन पर जगमगाता नंबर देखा था, और फिर दूसरी नज़र हयाम पर डाली थी, जो इसकी तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी। हयाम, वो इसकी तरफ खिसकता इसके बराबर होकर इसके कंधे पर हाथ रखता बोला था। हयाम एकदम से इसका हाथ का जोर कंधे पर महसूस करके जल्दी से उठ बैठी थी। जय जी। वो ज़रा सा दूर हुई थी, लेकिन वो पहले से ही बेड के किनारे पे लेटी थी। मज़ीद रोती तो ज़मीन पर चली जाती। ये तुम्हारी दोस्त की कॉल है, इसको रिसीव करके सो जाना। वो मोबाइल इसके हाथ में थमा चुका था और एक हाथ से इसके गिर्द कंधे पे रखा था। वो इसके बाजू के हल्के में आ गए थे। हयाम इसकी गिरफ्त में घबराई थी। कौन सी दोस्त? इसका दिमाग इसकी गुर्बत से माफ हुआ था। इतने दिन बाद इसे याद भी न आया था कि कौन, लेकिन फिर जहन में आया था, क्या ये सामी है? इसने नंबर देखा और यस किया था। हेलो, वो आहिस्तगी से बोली थी। ज़मीन के साथ लग के बैठने में शायद इसकी आवाज़ इतनी ही आहिस्ता निकलनी थी। हयाम, हयाम यार। नस्वानी आवाज़ सुनकर हामी जल्दी से बोली थी। आवाज़ पहचाने में सेकंड लगा था। इसे नहीं मालूम था कि किस्मत इस तरह मेहरबान हो सकती है। सोते हुए इसने ऐसे ही तामीर का नंबर डाल दिया था, लेकिन उम्मीद न थी कि कॉल उठाएगा। लेकिन हयाम की आवाज़ पे इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। आवाज़ में नमी घुल गई थी। कैसी हो? कहाँ हो? आई लव यू, आई मिस यू। वो एक साथ ही रोती आवाज़ से शुरू हो गई थी। ठीक उस समय के बरक्स इसका लहजा आम था। खुशी की लहर इसके वजूद में नहीं दौड़ी थी, या इसे लगा ही नहीं था कि वो किसी अपनी दोस्त से बात कर रही है। तुम ठीक नहीं हो? हयाम सामने परेशान हो गई थी। तुम कैसी हो? मैं कराची में हूँ। वो इसकी बात को उलट जवाब दे चुके थे। आई एम फाइन। तुम्हें मालूम भी है तुम्हारे मनहूस शौहर को मैंने कितने कॉल्स की है? वो कॉल से नहीं उठाता था। कितना परेशान थी कि न जाने तुम्हें कहाँ लेकर मर गया है। लेकिन शुक्र है, तुम्हारी आवाज़ ने मेरी ज़िंदगी कितनी पुरकशिश बना दी है। सामने सारा गुस्सा निकालती बोली थी, वक्त नहीं मिला होगा सामिया। वो ज़मीन पे चौड़ नज़र डाल के बोली थी, जिसका ध्यान तो लैपटॉप पर था, लेकिन वह बखूबी सब सुन रहा था। वो इसके करीब ही बैठी थी, तो इसे आसानी सब सुनाई दे रहा था। किसे वक्त नहीं मिला, सामने को समझ ना आया था। इन्हें इन्हें वो बहुत ही कम आवाज़ में बोली थी कि ज़मीन नहीं सुन सके। इससे बात करना दुश्वार हो रहा था। इतनी आहिस्ता बोल गई तो तुम्हारी दोस्त बैरी हो जाएगी। आवाज़ निकालो। ज़मीन आंखें दिखाता बोला था, और फिर इसके कंधे पे जोर दिया था कि हयाम का सर ज़मीन के बाजू से लग गया था। क्या इसका रवैया ठीक है? तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? मैं आऊँगी कराची इस ही हफ्ते। तुम एड्रेस दे देना मुझे। अभी वो एक साथ बहुत सवाल कर चुकी थी। बराए करम मैडम, आप यहाँ तशरीफ़ इतनी जल्दी मत लाइएगा।
न्यू मैरिड कपल है हम, हमें प्राइवेसी की ज़रूरत है। 2-3 महीने बाद चक्कर लगाएंगे तो बेहतर है। आपकी दोस्त इस वक्त मसरूफ़ होती हैं, बल्कि रात के वक्त हम दोनों बहुत मसरूफ़ होते हैं ना, इसलिए रात को आइंदा आप कॉल नहीं करेंगी। शुक्रिया, गुड नाइट। सामिया ने कहा, भाई हम कहाँ से फ़ोन किया था? सामिया से कहा, इससे हैरत हुई थी। इसके माने के जुमले से वो तब उठी थी, लेकिन कुछ कह भी ना सकी थी, यहाँ तक कि वो कॉल बंद कर चुका था। अपनी दोस्त का बोलना, आइंदा अपने कलाम अपने पास रखे, वरना इसके घर पे रेड करवा दूंगा कि वो दूसरों के शोहर को इस तरह गालियों से नवाजती है। सामने ने फ़ोन साइड पे रख रहा अयाम से बोला था। अयाम की आंखें पटी की पटी रह गई थी। आखिर क्या था वो शख्स? मैं सोती हूँ वो जान बजाती, इसके बाजू कैलके से निकलना चाहती थी। जी नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ जागो जब तक मैं नहीं सोता। वो इसको साफ मना कर चुका था और वरना वो आंखों से इसे देखती रह गई थी। इसके बाद उसे लगी वो इसकी लैपटॉप पे चलती उंगलियां लैपटॉप की तकरीब की नज़रें महसूस कर चुकी थी। इसकी ग्रफ से निकलना नामुमकिन था। जारी है, उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी न्यू एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।